So the matter in our surroundings, what are the characteristics that you have learned from our last class? We learn definition of matter. Yes. Characteristic of particle of matter. Physical nature of The matter. thing which has mass is called matter. Can you see the board? No. Yes, sir. Yes, sir. So I can tell definition. But I am writing something on the board that is not coming. Yes, sir. Let me reconnect it again. Characteristics of particle of matter. Right. Sir, I can't see the board. So the particles of matter Have space between them. are very small, right? That is tiny. And the second one is that The particles of space. The particles of matter have space between them. oh, the particle has space between them, right? The particles of matter have space between them. Next one. These particles are That will be discussion on that. matter is made up of The many small particles particles. are in motion. Are in Random motion. that is constantly moving. The number 4 is that The particles of movement attract each other. yes, the particles of matter attract each other. Need to write it on your copies, in your copies. So the first two properties we have discussed in the last class. But today we are going to discuss the number 3 and number 4 properties. How the things happen. Okay? Write it down fast.
completed? Yes, sir. Okay. अरे मेरे तब नोट पढ़ रहा हूँ. Credit card bills on Cred, you earn Cred coins. Use them to claim exclusive rewards and cashback. Now that gets me as excited as Indians around Neeraj Chopra. गोल्ड का भाव काफी बढ़ गया है। गोल्ड की बात क्या? प्लैटिनम बेच के एफडी में डाल दो। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में। Physical nature of matter and characteristics of particles. In this fantastic world, you can see wonderful things. Can you tell me how you can identify these things? Absolutely. There are different parameters like color, sizes, and shapes. In your mind, that is, what exactly is matter made up of particles, and these particles are very small such that they are invisible to naked eye. Sir, I A can't sugar see crystal, for example, is broken Yes, any problem? into pieces and continue to break it, then we may get millions of pieces, which means that a sugar crystal may contain millions of tiny sugar particles. Let us now have a look on activity. Once the idea of matter is finalized, the next thing we have to do is to classify the matter. In ancient time, Indian philosophers classified matter in 5 basic elements called Panch Tattva. They believed that any living or non-living things are made up of these basic elements. Scientists of new era classified matter on basis of physical and chemical properties. Here are some of the properties. Properties of particles of matter. Space between them. When sugar is added to water, it dissolves. But in reality, sugar particle occupies spaces between water particles. This means that particle of matter have spaces between them, and so particle of one type of matter occupies spaces between other type of matter. Continuously moving. Particles of matter possesses kinetic energy which allow them to move. As temperature increases, motion of particles increases, so kinetic energy also increases. As So temperature as per the particles of matter are continuously moving. This is the process that we call it kinetic energy. What is kinetic energy? The energy required to move is called kinetic energy. So in case of the car, that is the moving from one place to another place, that has been also named as kinetic energy. So you can't see anything. Ajar Raja. It is the same for all. You cannot see anything. Muhammad Jahid or all the students, are you able to? Yes, sir. Yes, sir. Muhammad Jahid, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there might be a network issue for Asar Raja. Okay. So what I was telling is that, so when
a car is moving or someone is moving, so it requires some kind of energy that is called kinetic energy. So when the temperature increases, as you can see, so what happened? The kinetic energy of the particle also increases. Hence, the motion also increases. See that we can see the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So we also observe that on heating, diffusion becomes faster. So the example of something like that, when you are kindling in agarbatti, तो व्हाट हैपन, अगरबत्ती आप जलाते हैं तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना? ये कैसे जाता है? तो एक मोशन होता है ना, इसको ब्राउनियन मोशन भी हम लोग बोलते हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। एक जगह पे हम लोग का गैस लीक हुआ, तो जैसे गैस सिलेंडर हम लोग चलाते हैं तो पता चलता है कि कुछ लीकेज हुआ है, तो ये प्रॉपर्टीज डिफ्यूजन के लिए वजह से होता है। तो ये पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि इस हिसाब से होते हैं। और एक दूसरा चीज है कि ब्राउनियन मोशन, कि आप कुछ भी एक इसमें डालते हो, दो चीज है, एक मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो गैस को एक साथ हम लोग अगर मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, और दो लिक्विड को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। क्योंकि क्यों होता है कि एक चीज ये होता है कि इसका जो पार्टिकल्स का स्पेस है इसके अंदर घुस जाता है, जैसे कि हम लोग लास्ट दिन में देखे थे, तो उस हिसाब से भी होता है। जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी किताब में पेज नंबर 3 में देखिएगा, और पेज नंबर 3 में यू कैन सी दिस, ठीक है। और इसमें कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है जिसमें भी पता लगता है कि 1.3 का देखिए एक्टिविटीज जो है पेज नंबर 2 में, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट इज सो एज टू गेट इट स्मॉल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, जब उसको जलाते हैं अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक का मतलब है अगरबत्ती, तो इसका जो है ना खुशबू चारों ओर फैल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आप इसको जलाते नहीं है तो क्या होता है, इसको अनलिट करके रखते हैं तो इसका कुछ उतना खुशबू नहीं आता है ना। तब बहुत करीब में गया तो उसको टच किया, तो फिर उसका टच अपने नोज का अंदर, नोज के यहाँ पे ले आया तो थोड़ा सा उसको जो है स्मेल हम लोग को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग इसको लाइट देते हैं, मतलब लाइट द इंसेंस स्टिक करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, स्मेल आता है ना। तो क्यों आता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन के वजह से आता है ना, डिफ्यूजन के वजह से। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो क्या होता है कि द स्प्रेडिंग जो है ये दो गैसेस के अंदर बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये एयर में है एक चीज, ये एगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, क्या जाता है, एगेंस्ट ग्रेविटी। आप एक चीज में जहाँ पे है इससे ज्यादा ग्रेविटी के वजह से ये दूसरे जगह पे चला जाता है, एंटी ग्रेविटी जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। देखिए अगला एग्जांपल जो किताब में दिया हुआ है, देखिए 2 glasses beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। क्या कहते हैं, put a drop of blue or red ink slowly carefully along the sides of the first beaker, मतलब 2 ग्लास हम लोग ले लिए और दोनों को पानी से भर लिए है ना। इसके बाद क्या किए, तो उसको ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक डाल दिए, इसमें फर्स्ट बीकर में, और उसमें हनी भी डाल दिए इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। तो क्या होता है, तो उसको थोड़ी देर इसको रख देते हैं, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या देखेंगे, what you will observe immediately after adding the ink drop, and what will happen when you are adding honey to it. So how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो इसमें क्या होता है, ये पार्टिकल्स में कोई बोल सकता है क्या होगा, can anybody say? ऐसे हम लोग रेड इंक डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर घुल जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस है ना।
और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये खुल जाता है. Let us see that. Particle of matter perform motion and occupy space between particles of other matter. They have ability to intermix with each other. Such an intermixing of particles of two different types of matter on their own is called as diffusion. चलिए इसको लिख लेते हैं. Intermixing of particles of two different types of matter in their own is called as diffusion. Students, write it down on your copies. In your copies. Intermixing of particles of two different types of matters on their own is called diffusion. So can you repeat again? Intermixing of Particles of two different types of matter on their own is called as diffusion. Written. so done. Let us look activity on motion of particle of matter. Attract each other. Particles of two different types of matter on their own is called as diffusion. Let us look activity on motion of particle of matter. These are two activities. जैसे कि हम लोग इसको already discuss कर चुके हैं. When incense stick is lit up, particles of increase from it possess kinetic energy. और क्या होता है? It slows, allows them to move and diffuse, है ना? With air particles. Hence, it becomes easy to smell in any corner of the room. दूसरी चीज क्या है इसमें? जो दो बीकर को लेके हम लोग जो हनी करने के एक्सपेरिमेंट किया, डेंसिटी ऑफ इंक is similar as that of water. Hence, ink particles start mixing with water particles immediately after addition. Honey, being denser than water, settles down and take more time. Okay, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is very important thing that you should know. The two experiments that has been given in your NCERT book also. So the honey will take more time. Why? Because honey is more denser than water. But soon after giving the ink, it will mix it in less time. Why? Because the density of ink is similar as that of water. Hence, the particles start mixing immediately with water particles after addition. Activity number 5. To demonstrate particles of matter moving continuously by using copper sulfate or potassium permanganate crystal. So we are dropping a crystal of copper sulfate in hot beaker and in a cold water beaker each. So without stirring the solution, what will happen? Hot water copper sulfate crystal dissolve in less time compared to cold water. Why? As we all know, when the temperature increases, the motion increases, as the kinetic energy also increases. That's why particles of copper sulfate possess kinetic energy which allow their motion, but kinetic energy increases with increasing temperature. As temperature of hot water is more than cold water, so copper sulfate mixes in hot water in less time. It is also an NCERT activity. It is given in page number 1.5. Okay. Attract each other. Particles of matter have force of attraction acting between them. This force of attraction varies from matter to matter. Upcoming activities show that particles of matter attract each other.
So this is another important property, that is the particles of matter attract each other. Now the question is how? The last thing that's when continuously moving, we have heard about a property called random motion, Brownian motion. Because when you are putting up pollen grains under the water, in the water, so the particles collide each other. अपने आप में ये लोग ना धक्का मारते हैं और अलग हो जाते हैं. तो अभी क्या आ रहा है कि एक नया चीज आ रहा है जिसमें हो रहा है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं. कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? So there are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together. अपने आप में जो एक है ना अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, अपने आप को एक साथ जुड़े रहता है. So the force of attraction between the particle of the some substances is known as cohesion, and in such substances is called as adhesion. जैसे कि हम लोग एक गम लगाते हैं, फेविकॉल, टेंडाइट, तो इसमें कैसे जुड़ जाता है? How is it get stick? कैसे जुड़ जाता है, कोई बता पाएगा? Can you say how it get attracted? कैसे ये स्टिक हो जाता है, पता है आपको? तो सर नहीं पता है. इसको देखिए कि कोई भी आप ग्लू लेते हैं तो ग्लू का ऊपर लिखा रहता है एडेसिव. क्या लिखा रहता है? एडेसिव. ADHESIVE, एडेसिव. तो इसको दो तरह का चीज होता है, एक वर्क ऑफ एडिशन, एक वर्क ऑफ कोहेशन. जो एक पार्टिकल्स रहता है, पार्टिकल्स के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहता है ना, तो उसका अंदर जो अट्रैक्शन रहता है अपने आप में, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ कोहेशन और वर्क ऑफ कोहेशन. और एक पार्टिकल जो कोई दूसरे चीज के साथ उसका अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ऑफ एडिशन. वर्क ऑफ एडिशन. ओके, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर. ठीक है. तो ये अट्रैक्शन ये होता है कि अपने आप में ये लोग जुड़ जाता है. तो इस वजह से क्या होता है कि ये द मैटर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, and this force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है. This is all with small introduction to matter and its particles. Attraction varies from matter to matter. Upcoming activities. ये जो है अट्रैक्शन एक एक चीज में एक एक तरह होता है कि सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. That's why in solid you can see all the particles are moving very close. They are very close. जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल हो जाता है सॉलिड का. देखिए कैसे जुड़े हुए हैं. लिक्विड में जो है थोड़ा सा उसमें गैप है और गैस में बहुत सारा गैप. समझ में आ रही है बात? यस सर. Yes, sir. पार्टिकल से सॉलिड में इसका मतलब जुड़ा, इसीलिए ना सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये बहुत हाई रहता है. लिक्विड का उससे कम रहता है, गैस का तो एकदम ही कम रहता है. गैस तो मेल्ट क्या करोगे, वो पहले से मेल्ट हुआ है ना. तो इसी से जितना अलग रहता है, जितना गैप रहता है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है. और जो जुड़े रहते हैं, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. हम लोग अगर एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ रहेंगे, सारे कॉम एक साथ रहेंगे, तो उसको तोड़ना मुश्किल है. लेकिन अलग अलग हम लोग बटे हुए रहेंगे तो उसको तोड़ना बहुत आसान है. उसी हिसाब से सॉलिड का देखिए आप, उसको तोड़ना आसान है. लिक्विड का जो है इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गैस का बहुत सारा डिफिकल्ट है. ओके. Show that particles of matter attract each other. देखिए यहाँ का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 6. So play this game with the field. Make 4 groups from human chains, and first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Misuimi dancers. Second group should hold hands to form a human chain. Third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many. So ये खेल है जिसे हम उसको खेल सकते हैं. तो एक्टिविटी देखिए, एक है कि टेक एन आयरन नेल और ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड. क्या क्या लिए? आयरन नेल लिए, एक चॉक. पेज नंबर 3 में देखिए, पेज नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 1.7 इन योर एनसीईआरटी बुक.
take an iron nail, a piece of chalk, and a rubber band. Okay, now try to break all the things, hammering it. Just a minute. Excuse me, sir. Yes, Excuse me, sir. say, Sir, you can repeat again. yes, of course. See, we have the iron nail, a chopstick, and a rubber band. Now we are trying to break all the three things by hammer, cutting, and stretching. When we apply hammer on iron nail, it do not break. But when apply chopstick, it breaks. But in rubber band, it doesn't. When you are cutting, we cannot cut iron nail. Can we cut the iron nail? No. No, sir. But we can cut the chopstick and also cut Yes, the rubber sir. band. Now we are stretching. When you are stretching, the iron nail cannot be stretched in a normal condition. But the chopstick we can break, and the rubber band also it cannot be, it can be broken. So why? The force of attraction in particles differs from matter to matter. So the force of attraction in iron particle is most. Hence, it doesn't break chopstick and rubber band would have comparatively less force of attraction between the break. Right? Now activity number 7. So अब समझ में आया activity number 6? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सॉरी जायद क्या बोले? Sir, समझ में आया? I want to ask what is intermolecular force of attraction? क्लियर नहीं आ रहा, आप चैट में लिख पाओगे? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू राइट इन द चैट? Okay, so to demonstrate that particles of matter attract each other with help of running stream of water tap. To demonstrate the particles of matter attract each other with help of running stream of water tap. So procedure: open water tap. Now try to cut the stream of water with your fingers. Stream of water cannot be cut using fingers, right? We cannot cut the stream of river, stream of ocean. It cannot be done. Why? So water particles are held with large force of attraction. Hence, it is not possible to cut stream of water from running tap. Okay? Okay, sir. So these are the things that the properties of matter. This is the explanation we need to read from our book also. So in page number 3, in page number 2, in page number 1, and all the activities also we have explained. There will be some MCQ question by applying these activities. So you need to write that why it is happening. Okay. So can we move to our next topic? There is the states of matter. Yes, sir. Yes, sir. So see the states of matter. So how many states of matter we have read? 3. 3 or 5? 5. So solid, liquid, gas, plasma, Ah. and last one, sir. Plasma. Both EC, ECS. BEC. है ना? Yes, Both sir. Einstein condensate. Yes, sir. Okay. Now open your page number, book page number, that is the can matter change in state. Oh, before the states of matter, page number 4. So of the different types of matter around you, what are the different states? You cannot see the matter around us exist. So there is 3 different states: solid, liquid, gas, but there is plasma and Bose-Einstein condensate also. Okay. So I'm just reading from your book. Everyone need to open your book, page number 4.
right? So now, so let us take an example that it will be easy to understand. Let me do that. और हम देखेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा हमें पता ही है, मैटर्स के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के एग्जांपल्स ही आप बता सकते हो आराम से। इसके एग्जांपल हो गया ब्रिक, टेबल, चेयर। इसका एग्जांपल क्या हो गया स्टूडेंट्स, बताएं आप? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हमारे आसपास जो हवा होती है उनमें सब ये गैसेज होती हैं। जैसे फिर स्टीम, वो भी एक एग्जांपल हो गया। जैसे पानी को जब बहुत गर्म करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है? स्टीम निकलता है, वेपर निकलता है, सो दैट इज आल्सो गैस। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं कि जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती हैं काफी हद तक। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो सीरीज क्या आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है इसमें? जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेनेशन किया है, देखिए सॉलिड के जितने पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर क्लोज टुगेदर, बट लिक्विड में जो है स्पेस ज्यादा है और गैस में बहुत सारा है ना? बड़ा डिटेल में देखेंगे, आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो देखें, सॉलिड की बात करते हैं, ये मान लो कोई लिक्विड है और ये कोई गैस है। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी तक आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें जो पार्टिकल्स आप देखो बड़ी क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, उनके बीच की स्पेसिंग कम होती है सॉलिड्स में। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होती है, जैसा आप देख सकते हो, और गैस में और भी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि यहां पे एक ब्रिक ले लो, यहां पे वाटर ले लो, यहां पे सपोज करो किसी बॉक्स में स्टीम है, तो ब्रिक के पार्टिकल्स जैसे आप देखो बड़े क्लोज होंगे, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और स्टीम के और भी दूर दूर है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको स्टूडेंट्स हम लिख भी लेंगे, यहां पे सॉलिड्स में लिख लेंगे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, वेरी लेस स्पेसिंग। लिक्विड में लिखेंगे मोर स्पेसिंग, इसमें वेरी हाई स्पेसिंग, ठीक। अब अगला क्या डिफरेंस है आप देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इसको लिख लेना है ना, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, मोर स्पेसिंग, वेरी हाई स्पेसिंग, वेरी लेस स्पेसिंग, ठीक है। 2 minutes. हो गया? No, sir. Yes, sir, done. वो आपस में एक दूसरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स है वो और भी कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, समझ लो। इनफैक्ट आप सोच सकते हो कि ये चीज और इसकी पहले जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वो रिलेटेड है, राइट। ये अब एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा पास है। ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं इसलिए पास है, लेकिन उतने पास भी नहीं है। और ये बहुत कम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसलिए दूर दूर है। लॉजिकल लग रहा होगा आपको, इसको भी लिख लेंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसके बाद हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते, वो मूव कर रहे होते हैं। तो तीनों में जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा अलग होता है। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब देखो वो अपनी जगह पे रह के, कोई भी पार्टिकल में ध्यान देना, तो अपनी जगह पे बस ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जब बात समझ में आ रही है, क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स है ना, वेरी लेस स्पेसिंग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, more spacing, less attraction between particles, very less attraction between particles ये गैस में है। तो ये जितना अट्रैक्शन होता है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये बहुत ही मतलब करीब में रहता है। जो दूर रहता है रिश्ता तो उसमें वो बात नहीं रहती है। जो आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जो रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन भी है ना बहुत ज्यादा होता है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पहले भी देखा है वो पूरे लिक्विड में मूव कर रहे होते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहां पे तो उतना स्पेसिंग होता ही नहीं है कि वो पूरे सॉलिड मूव कर पाए, इसलिए अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं। यहां पे इतना स्पेसिंग होता है उनके बीच में कि वो पूरे लिक्विड में मूव कर सके। और अगर हम गैस की बात करेंगे तो वो भी, इसके पार्टिकल्स भी पूरे के पूरे ऊपर नीचे हर तरह से मूव कर रहे होते हैं।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो हमको इसको लिखेंगे कि पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, पार्टिकल्स मूव थ्रू आउट द लिक्विड, पार्टिकल्स मूव थ्रू आउट द गैस वेरी इजिली। ये पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन में ये वाइब्रेट करते हैं, दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग एक घर तैयार करते हैं, तो घर का क्या एक घर दूसरे घर में चला जाता है? नहीं। जब कोई भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अपनी जगह में जो है रॉड जो है वो हिलता है। लेकिन जो लिक्विड है, जैसे पानी बहता पानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। और जो गैसेस है, ये पार्टिकल्स मूव थ्रू आउट द गैस वेरी इजीली। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पे आप ये भी देखो कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन एक्चुअली कम है, राइट? उतना नहीं है जितना यहां पर है। यहां पे तो पूरा अंदर अंदर मूव कर रहे हैं वो लोग, और यहां पर जो मोशन है और भी ज्यादा है, इजंट इट? तो होता क्या है कि यहां पे पार्टिकल्स का मोशन कम है तो लेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पे मोशन और ज्यादा हो रहा है तो मोर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मोशन और भी ज्यादा हो रहा होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू गेट दिस। सो दिस आर सम, ये समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी वाली बात भी समझ में आया सबको, है कि मैंने डिस्कशन कर लिया इसका। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका है? जो मूव ज्यादा करता है। तो गैस में मूव ज्यादा करता है, इसीलिए इससे ज्यादा है। लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम, लेकिन सॉलिड से ज्यादा है। तो ये मोर है सॉलिड से, लेकिन लेस है गैस से, और सॉलिड का सबसे कम रहता है ना? वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने बताया जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। अब और बहुत सारे डिफरेंसेस इनके बीच में बताऊंगा। सबसे पहला जो है दैट इज फिलिंग कंटेनर। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो मैंने 3 कंटेनर्स लिए ऐसे, एक मैंने एक सॉलिड डाला जैसे ब्रिक, इसमें एक लिक्विड डाला जैसे वाटर, और इसमें कोई गैस डाल दी, मे बी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो गैस होती है पूरे कंटेनर में फैल जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड जो है वो वैसा नहीं करते, वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर रहे। इनफैक्ट अगर आप इस बॉक्स को बड़ा कर दो तो गैस जो है वो पूरे बॉक्स में फिर से फैल जाएगी, और बड़ा कर दो तो उसमें भी फैल जाएगी। तो पॉइंट ये कि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि पूरे कंटेनर को भर देना है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप देखो ये स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट, कि सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है। दैट इज द रीजन फॉर दिस फीचर। एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इतना कम है कि वो आराम से दूर दूर हो जाते हैं, जितनी भी जगह मिलती है उसको भर देते हैं दूर दूर होकर, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन कम है। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स दूर नहीं भाग सकते कंटेनर को भरने के लिए। समझ में आ रही बात? लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इतना है कि वो दूर नहीं भाग सकते और कंटेनर को फिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन गैस में इतना कम अट्रैक्शन है कि वो दूर भाग के फिल कर देते हैं पूरे कंटेनर को। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं आपको ये लिख के भी दे दूंगा ताकि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको उसका आइडिया लगेगा। The attraction force between the tiny particles in gases is very less. Due to this, these particles can easily move away from each other and thus filling the container. In solids and liquids, attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जाते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें, शेप एंड वॉल्यूम। तो सपोज करो हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्सेस हैं, फिर 3 बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, और फिर 3 सर्कुलर बॉक्सेस हैं। ठीक है, आपने ब्रिक को एक बार, सॉलिड को बेसिकली इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? ब्रिक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिक तीनों केस में रहेगा अपना। अच्छा, अब कोई लिक्विड ले लो, वाटर। तो वाटर को अगर मैं तीनों में डाला तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप ध्यान दो, इसमें जो वाटर है उसका शेप वो रेक्टेंगुलर टाइप हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। तो यहाँ सर्कुलर बॉक्स में डाला तो सर्कल के अकॉर्डिंग हो गया, अगर किसी और शेप के बॉक्स में डालते तो उसके जैसा हो जाता, राइट? सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब केस में वैसा ही है। अच्छा, अगर हम तीनों में गैस डालते हैं तो भी आपको पता है क्या होगा? इसमें गैस इस पूरे बॉक्स में फैल जाएगी, ये बड़ा बॉक्स है तो उसमें भी पूरी फैल जाएगी, ये थोड़ा सर्कुलर बॉक्स है तो उसमें भी फैल जाएगी। तो अब ध्यान दे रहे हो कि सॉलिड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, लिक्विड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और गैस जो है वो भी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। अब थोड़ा एक्सप्लिसिटली बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की। तो मुझे बताओ, जब अलग कंटेनर्स में सॉलिड को डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं हुआ है।
तो हम बोलेंगे इसका शेप कैसा होता है, सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप। अच्छा, लिक्विड्स को जब अलग कंटेनर्स में डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? बिल्कुल, जिस कंटेनर में डाला उसके जैसा ही शेप ले लिया उसने, तो नो फिक्स्ड शेप। गैस का, उसका भी नो फिक्स्ड शेप। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। स्टूडेंट्स आप ध्यान रहने देते हैं क्योंकि 2 मिनट बाकी है अगला क्लास में। तो हमको समझ में आया कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, whereas the liquid no fixed shape and the gas have no fixed shape. Are you getting my point? Yes, sir. तो इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना है बच्चों। 2, 3, 4 पेज तक आप एनसीईआरटी का किताब को इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगला क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो प्रॉपर्टीज है इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए जी सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।